سب سے پہلے تو بھائی یہ بیان میں نے خود نہیں سنا، لیکن میں آپ کی بات میں کلپس بھی دیکھیں گے اور آپ کی بات پہ مجھے اعتبار ہے اور میں آپ کے توسط سے اس بیان کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پروفیشن کی توہین انسان کا ظرف ایکسپوز کرتی ہے، اور اگر اس طرح کا بیان آیا ہے تو اس کی مذمت بھی کریں گے، کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اس کی مذمت کریں گے۔ اللہ کرے کہ پارلیمنٹ کا ماحول جو ہے وہ قانون سازی اور عوام کے مسائل کو اٹھانے کے لائق آج ہو، کیونکہ ہم بہت ساری باتیں وہاں کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کے ایشوز وہاں اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومت پے در پے پارلیمنٹ کا ماحول خراب کر رہی ہے اور صرف پارلیمنٹ کو عوام دشمن لیجسلیشن پاس کرنے کے لیے یا آرڈیننس کو پاس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ کل آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں ہوا، ٹرین کا وہ حادثہ جس نے کتنی معصوم جانیں لے لیں، اور اس وقت چیئر میں براجمان ڈیپٹی اسپیکر کہتے رہے کہ 40 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 100 سے وہ آگے نکل گیا تھا نمبر۔ تو بے حسی کا عالم کل یہ تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ ان اموات کے بعد اور اتنے لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان بوگیوں میں، ان کی فکر کرنے کے بجائے ان کو یہ فکر تھی کہ ہم آرڈیننس پاس کر لیں، ہم IMF کی طرف سے آئی ہوئی ڈکٹیشن پر قانون سازی کر لیں۔ ہم کہتے رہے کہ لاشوں پر لیجسلیشن نہ کریں، ایک دن رہنے دیں، آپ کل کا دن کر لیجئے گا۔ آج کون سوگوار ہے، چاہے وہ کسی کے گھر کا بچہ ہے، بچی نہ بھی ہو، لیکن ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ اس وقت دکھ میں تھا جب یہ ہمیں حادثے کی خبر ملی۔ اور یہ بھی کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ وہ صرف گھوٹکی کے مسافر نہیں تھے، اس میں مسافر پورے پاکستان کے علاقوں کے تھے، تو ہر پاکستانی کے لیے ہمیں درد اور تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے تھا کل، لیکن وہ نہیں ہوا۔ آپ سہیل بھائی شاہدین علی صاحب یہ بتائیں، ایک تو آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو نے تمام پیپلز پارٹی کے ارکان کو شہباز شریف کے حوالے کر دیا بجٹ کے دن تک یا کسی بھی حوالے سے، لیکن کل کا جو واقعہ تھا وہ احسن اقبال صاحب والا، اس کے بعد کیا اپوزیشن ہوگی؟ دوسری بات یہ بتائیں، یہ جو کل حیدر بھائی یا حسین طارق صاحب جو چٹا کٹا کھولیں گے ان کا فگرز کا یا مانی والا صاحب، یہ صرف پیپلز پارٹی کا اپنا ہے یا متحدہ اپوزیشن کا؟ دیکھیے، ایک تو اپوزیشن کے اندر مختلف جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک جماعت نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام ممبرز کے ساتھ پہلے ڈائیلاگ کریں اور اس کے نتیجے میں جو تجاویز آتی ہیں اور پھر جو فیکٹ فگرز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک مفصل بریفنگ کی جائے۔ تو یہ پچھلے برس بھی ہم نے کی تھی، اس برس بھی یہی ہمارا پروگرام ہے جیسے پہلے کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا، اور دوسرا یہ کہ کل ہم پیپلز پارٹی کی اس پریزنٹیشن کو یا بریفنگ کو آپ کو دیں گے کہ ہم اپنے لینس سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں، گو کہ یہ کوئی اتنا میرا نہیں خیال ہے کہ مختلف ہوگا، کیونکہ ملک کے حالات تو کسی بھی لینس سے دیکھ لو، اگر وہ حقیقی لینس ہے تو آپ کو غربت نظر آئے گی، بے روزگاری نظر آئے گی، مہنگائی نظر آئے گی۔ تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی زیادہ تفریق اس میں ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی اپنا کل اس پر پیپر دے گی۔ جو آپ نے بات کی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کر، دیکھیے کل بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ یہ روایات ہوتی ہیں پارلیمانی روایات، اور پارلیمانی روایات کے مطابق یہ کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جو پارلیمانی ہیڈ ہوتے ہیں ان کا موقع یا ان کو جو ریکگنائز کیا جاتا ہے اس کا احترام کیا جائے۔ ہم دو جماعتیں PPP اور PMLN دونوں اسمبلی میں ہیں، اور کل ہمارے پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی پر فلور چاہتے تھے تاکہ گھوٹکی کے اس واقعے پہ بات کر سکیں۔ چیئر نے ان کو ریکگنائز کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک ریاکشن نون لیگ کے ایک سینئر پارلیمنٹیرین کا آیا، وہ کہ ہمیں خود حیرت ہوئی اس ریاکشن پر، اور ہم نے اسے اگنور کیا۔ دوبارہ جب تفصیلاً بات کرنے کا موقع ملا چیئرمین صاحب کو، کیونکہ پہلے تو انہوں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا،
لیکن جب انہیں دوبارہ تفصیلاً بات کرنے کا موقع ملا تو اس وقت بھی اس سینئر پارلیمنٹیرین نے بہت ہی نامناسب اور غیر معیاری باتیں کی جو دکھ یقیناً تکلیف دہ تھی، ہمیں دکھ ہوا. اور جب بلاول صاحب بات کر رہے تھے تو وہ بھی ایک بہت تکلیف دہ ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے. وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم سے کوئی رنجش یا کوئی آپسی تناؤ ہو، لیکن ہم جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کا احترام اور عزت کرتے ہیں، ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے پارلیمانی لیڈر کا وہی احترام کریں گے. جب شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، چاہے ہمیں فلور ملے، ہم تب بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے پہلے فلور مانگ رہے ہیں تو ان کو فلور دیا جائے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے. اور ایک مرتبہ تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے خود اپنا مائک شہباز شریف صاحب کو دیا جب چیئر نے شہباز شریف صاحب کی بجائے راجہ صاحب کو ریکگنائز کیا، لیکن انہیں پتا تھا کہ شہباز صاحب مائک مانگ رہے ہیں تو انہوں نے احتراماً ان کو مائک دیا. یہ روایات ہوتی ہیں پارلیمانی. تو اگر پارلیمانی روایات کسی کو عمر کے اس حصے میں بھی سمجھ نہیں آتی تو ہمارے چیئرمین صاحب کی نوجوانی ان کو کیوں کھٹکتی ہے؟ چیئرمین صاحب نوجوان ضرور ہے لیکن وہ سمجھدار ہیں اور انہوں نے سیاست میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور دیکھی ہیں. تو یہ جو تنقید کی جاتی ہے ایج کے اوپر یا ان کی چیئرمین شپ کے اوپر، یہ بھی کل ہم نے دیکھا بہت افسوسناک تھی. میں امید کرتی ہوں شہباز شریف صاحب اپنے اس رکن کے اس بیہیویئر کا نوٹس لیں گے. موجودہ حکومت آپ کی حکومت پر، جو سابقہ حکومت ہے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت پر بھی ملبہ ڈالتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے فسکل اسپیس نہیں چھوڑی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فسکل اسپیس ہمارے پاس ہے ہم اسی میں معاشی پالیسیاں بنائیں گے اور جو اقدامات کرنا ہوں گے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ابھی پولیس صاحب نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی ٹیم کا ایک اور طارق ملک کی، تو دفاع سے لے کر اور دادرا تک سب پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. تو پھر لوگ آپ کو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جی یہی برا کام کر رہے تھے تو اس لیے ہم ان کی ٹیم لے آئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا کام کریں گے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جواب بھی آپ نے دے دیا ہے لیکن پھر بھی حیدر صاحب کو ہم فسکل اسپیس پر پوچھ لیتے ہیں. جی بتا دیں فسکل اسپیس حیدر صاحب. فسکل اسپیس پہ مجھے کہہ رہی، میں رسپونڈ کر دیتا ہوں. دیکھیے فسکل اسپیس تو موجود تھی کیونکہ 5.8% گروتھ تھی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا جو 19 ارب پہ تھا، اور بائی دا وے اپریل میں تقریباً 3.5-4 ارب ہو گیا، اور جب تک جون کلوز ہوگا یہ 6 ارب تک آ جائے گا. اور عید کے بعد سے اب تک 2.5 روپے پاک روپی جو ہے ڈیویلیو ہو چکا ہے، پھر روپی پہ پریشر آ رہا ہے، اور یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے. دوسرا فسکل اسپیس ہم نے نہیں دی یا انہوں نے خود ہی لٹا دی. مجھے بتائیے کہ یہ ان کا 100 روزہ پلان ہے، انشاءاللہ اس پہ کل بھی اور بات ہوئے گی. اس میں انہوں نے کہا تھا ہم پی آئی اے کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے. وہ عظیم تر کیا بنایا؟ وہ ریجنل کیریئر نہیں، اندرون ملک کیریئر بنا دیا. 15,000 ارب 15 ٹریلین پی ٹی آئی نے قرضہ لے لیا ہے. 30,000 پہ پی ایم ایل نواز نے چھوڑا تھا. آپ بہت سنتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اتنا کیا. 30,000 سے 45,000 ارب ہو چکا ہے، اور اس مالی سال میں یہ اندر 10 سے 15,000 ارب لینا چاہ رہے ہیں. اور تو جو 70 سال میں آپ نے قرضہ نہیں لیا کسی حکومت نے بھی، سب ڈکٹیٹر بھی شامل کر دیں، انہوں نے 2 سال میں 15,000 ارب لے لیا ہے. فسکل سپیس ان کے پاس ہے. میں نے آپ کو بتایا نا فسکل سپیس ایسے ہے کہ اہلیت بھی تو ہونی چاہیے نا فسکل سپیس کی. اب بزدار صاحب اور محمود خان صاحب اور جام کمال صاحب جیسے چیف منسٹرز کے ہوتے ہوئے یہ میرے سامنے پی ایس ڈی پی ہے. میں نے کیونکہ بات مختصر کی، اس مالی سال کا پی ایس ڈی پی تھا 565 ارب فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں سے آج کے دن تک 375 ارب خرچ کر پائے ہیں. یعنی جو پیسہ رکھا بھی ہوا ہے ان میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہی خرچ کر لیں. میں نے آپ کو اعداد و شمار دی ہے. تو فسکل سپیس ہونا یقیناً، اور فسکل سپیس آپ نے پیدا کرنی تھی نا. آپ نے یونیورسٹیاں بنانی تھیں، گورنر ہاؤس گرانے تھے، آپ نے دال چاول والی سرکار رکھنی تھی، اللے تللے ختم کرنے تھے. سالانہ 20% جو ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا ہے نان ڈیولپمنٹل اس حکومت میں،
ऑन ईयर, तो उस पर तफसीली बात हो सकती है. फिस्कल स्पेस है जहां पे इन्होंने लंगर खाने चलाने थे, 150 अरब दे दिया ना, क्योंकि वहां पे मामलात सेट थे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में नहीं दिया. तो मैं आपको बता रहा हूं फिस्कल स्पेस मौजूद है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, तर्ज हुक्मरानी ही नहीं आती, अगर आपको समरी पढ़नी और लिखनी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? आपकी तरक्की की शरह, और आप कह रहे हैं हम 900 अरब इस साल देंगे और खर्च करेंगे. अरे भाई, एनएफसी के तो आपने पैसे नहीं दिए, हर सूबा रोक रहा है, किसी का आप पानी रोक रहे हैं, किसी के पैसे रोक रहे हैं. सो आप में एहलियत नहीं है. वजीर खजाना हमारा 3.4 सिंध को कम मिला है जी, 83.4 बिलियन सिंध को कम मिला है, पंजाब को कई हजार अरब इससे कम मिला है. आपकी फाइनेंशियल कलेक्शन कम है, मैंने आपको बता दिया ना, फाइनेंशियल कलेक्शन होएगी, और 4000 अरब में से 2900 अरब तो आपकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, तकरीबन 2200 अरब आपका दिफा है. तो आप कहां से फिस्कल स्पेस निकालेंगे? आपने फिस्कल स्पेस तो आपने तो कर्जे खत्म करने थे. आपने तो इसाक डार साहब ने 400 अरब दिया था, तो उसके बाद तो सर्कुलर डेट खत्म हो जाना था. 480 से लिया आपने, आप ले आए 2300 पे, और 400 गुना बिजली महंगी की, 600 गुना गैस महंगी की. 6 CBR FBR चेयरमैन, इसमें कहते हैं हम FBR को अजीम शान बनाएंगे, ये आपको बताएंगे हम कल. 5 FBR चेयरमैन चेंज किए शब्बर जैदी समेत, 6 IG चेंज किए, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज किए, फिर भी फिस्कल स्पेस नहीं है. अरे भाई, कहां से स्पेस निकालें? इनको मान लेना चाहिए कि ये नाअहल है, नालायक है, तबाही, नाअहल, और जो है सरकार है, अब उस पे और क्या बात कर सकते हैं? असल में इसमें एक सेकंड इसी में शायद अद्दा जो सवाल पे एड हो जाए ना, फिस्कल स्पेस से अगर एक सेकंड, असल में सर फिस्कल स्पेस होती है आपकी अपनी पॉलिसीज की वजह हिसाब से ना. आपका जो सीधी अगर बिल्कुल सिंपल बात करें तो एक तरफ हमारा एक्सपेंडिचर है और दूसरी तरफ हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है, FBR के थ्रू टैक्सेस या नॉन टैक्सेस. ठीक है सर, अगर आपकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि जिसमें आप अपनी जो एक्सपेंडिचर साइड है उसको और अपने जो रेवेन्यू साइड है उसको आप बैलेंस कर सके, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो डेट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे. ये पिछली हुकूमतों की वजह से नहीं है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई 5-6 ट्रिलियन का डेट था, मेरे ख्याल से नून लीग का कोई अबाउट 10.6 के करीब ट्रिलियन डेट था. ये तो उन दोनों को ये हमेशा बात करते हैं कि पिछली हुकूमतों की वजह से हम लोग आज इस क्राइसिस में. असल में बात यह है कि सर इन लोगों ने जो 3 सालों में जितना डेट लिया है और जो पिछली हुकूमतों पे लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से अकेले इन्होंने उन पिछली हुकूमतों से ज्यादा डेट ले. नहीं, बिल्कुल आपका ख्याल नहीं है, ये हकीकत है. तो ये चीज कीपिंग असाइड, देखें पिछली हुकूमतों ने भी लोन सर्विसिंग, डेट सर्विसिंग करनी होगी, एक्सपेंडिचर्स को मीट करना होगा, लेकिन कम से कम उनकी पॉलिसीज की वजह से वो मिनिमल था. अभी इन लोगों की पॉलिसीज की वजह से लिटरली वो बहुत ज्यादा डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज दे कैन नॉट मीट देयर एक्सपेंडिचर्स. तो फिजिकल स्पेस खुद क्रिएट की जाती है पॉलिसीज से. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, कुरैश साहब हैं, आप हैं, दामोद साहब हैं, एक तबाहकुन मंजरनामा पूरा बताएं मुल्क की मैशत का. अभी 2 साल बाकी हैं. इस मुल्क का जो 22 करोड़ लोग हैं, उन्होंने आप सारी अपोजिशन का क्या कसूर किया है कि आपके आपस में एक दूसरे की दाढ़ियों में हाथ हैं, हुकूमत बिल्कुल आराम से बैठे. देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है जिस तरीके के इख्तलाफात अपोजिशन जमातों के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने के काफ़ी अरसे बाद जो हैं वो पैदा हुए, और कुछ लोगों ने उसे तूल दी. गो कि हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि हमारा टारगेट एक ऐसी नाअहल हुकूमत है जिसने जो इस मुल्क का नशर किया है वो आज हमने एक बार फिर आपके सामने रखा है. ये नहीं कि आप इससे कबल आपको नहीं पता था, आप भी जाके घर के लिए सौदा लेते हैं. घरों में आप सबके, हमारी भाभियां जो हैं वो सौदे का थैला पकड़ाती हैं तो जेब को पता चल जाता है, और जेब को क्या पता चल रहा है इस दौर में ये भी सबको पता है. तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन यकीनन ये ऐसी बात बहुत फिर दूर चली जाएगी, और फिर कई चीज़ों का जवाब फिर कुंडी साहब को भी देना पड़ेगा. कुछ ऐसे बयानात आते हैं जिनके जवाब हम इनको कहते हैं आप दे दिया करें. लेकिन बात यह कि देखिए, हम अभी भी चाहते हैं, और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये एक बड़ी खुले दिल से ऑफ़र की, जिसको कि अभी आपने जिक्र भी किया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में ये बजट वोट होता है या वोट आउट होता है,
अब जारी बात है गवर्नमेंट के पास नंबर जरूर है अपनी जगह, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो गवर्नमेंट के अंदर जो दरारें पड़ी हुई हैं और गवर्नमेंट के अंदर जो एक पूरा एक एक्सपोजे हो चुका है, इनकी ग्रुप बंदियां हो चुकी हैं, इनके लोग नाराज हो चुके हैं, उस तमाम पस मंजर के अंदर ये ऐन मुमकिन है कि ये बजट वोट आउट हो जाए और इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, जिसके लिए बिलावल साहब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को एक मर्तबा फिर ये ऑफर की है कि पार्लियामेंट के अंदर हम सर जोड़ के बैठें और जो भी स्ट्रैटेजी वो बहैसियत ऑपोजिशन लीडर बनाएंगे, बिलावल साहब उनके अरकान उसको फॉलो करेंगे और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस अवाम दुश्मन बजट को हम रिजेक्ट करें और जिस तरीके से हमने गिलानी साहब के वक्त इनकी जड़ें हिलाई थी, उसी तरीके से हम पार्लियामेंट में इस बजट की वोटिंग के दिन इनकी जड़ें हिलाएं। आप ये फरमा दीजिएगा कि जो पीपल्स पार्टी है, आज पीपल्स पार्टी के हवाले से शेख खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी को बात करने से पहले बात करने के आदाब सीखने चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी उनसे कुछ क्लासे वगैरह लेने का सोच रही है? और इसी के साथ दूसरा ये है कि जितना नाअहल हुकूमत है तो उससे ज्यादा नाअहल अपोजिशन ही है कि इतनी आसान हुकूमत को अभी तक गिरा नहीं सके। कुंडी साहब आप जवाब दे दें, मेरे ख्याल खाकान अब्बासी साहब को। देखिए, खाकान अब्बासी साहब ने इधर आ जाए आप या मैं। देखिए, हम खाकान अब्बासी साहब के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने में बात की, लेकिन अगर वो ये बयान देने से पहले शहबाज शरीफ साहब से पूछ लेते तो अच्छी बात थी। देखिए, क्या शराफत और मशरकी रिवायत है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन घर में बुला रहे हैं और बाहर सड़क पे जो है दूसरा ग्रुप जो उनका खड़ा है वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये रिवायात मगरब में शायद ये भी ना हो, तो ये जो है अब अपने ही पार्टी के प्रेसिडेंट को जो जिस तरीके से वो मतलब बुरा भला कह रहे थे, हमें नहीं कह रहे थे, वो बुरा भला अपने पार्टी के प्रेसिडेंट को कह रहे थे। हमने अभी भी कहा है, आपने जो सवाल किया है, हम अपने मेंबरान अभी भी शहबाज शरीफ के हवाले हैं। जब भी अदम एतमाद की तहरीक लेके आना चाहते हैं, पंजाब में लेके आना चाहते हैं और मरकज़ में लेके आना चाहते हैं, और उनकी मुआवनत भी हम करेंगे। लेके आए, अपोजिशन इकट्ठी हो, लेके आए, लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों हाउसेज में हम साथ होंगे। मलिक सईद सर, वर्ल्ड टीवी से मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे अभी आपने सवाल का जवाब दिया है, शायद खाकान अब्बासी साहब आपने तस्वीर जब इधर से नून लीग में थे, तो अवाम में एक तासुर ये जा रहा है कि इस टाइम जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं वो हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पे तनकीद कर रही है और इस पे हुकूमत जो है वो बाहर बैठ के तमाशा देख रही है सारी सिचुएशन में और उनको वोट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। इस पे आप हमें बताएं कि असल में बात क्या है कि दोनों अपोजिशन पहले पीडीएम में भी इकट्ठी थी, अब जैसे ही बाहर आई है दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी चल रही है, इकट्ठे चलने को तैयार कोई नहीं है। बीच में असल मसला क्या है, दोनों पे इल्जाम आ रहा है कि गवर्नमेंट को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा ख्याल है वही सवाल की नौयत वही है जो आपने पहले कहा है। पीपल्स पार्टी हरकत ही नहीं चाहती है कि हुकूमत को कोई भी सुकून या वो कंफर्ट मिले जो ये चाहती है इतनी तबाही करने के बाद भी। ये तबाही सरकार है, ये तबाही सरकार उन तमाम वजूहात की बिना पर है जो वजूहात मुख्तसरन आपके साथ हमने आज शेयर की हैं। तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए। आपका सवाल मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ हमें नहीं, हमारी तरफ रागिब नहीं है, उस जमात की तरफ भी है। और जिस तरीके से अभी एक भाई ने हमें बताया कि हमारे लिए क्या बयान दिया गया, तो हमें इल्म नहीं था। बखुदा हमारी कोशिश यही है कि अवाम की आवाज़ उठाएं, महंगाई और गुर्बत और बेरोज़गारी पे बात करें और आने वाले बजट में जितना हो सके इस बेशरम हुकूमत को शर्म दिलाएं कि कुछ अवाम का सोचो। जो 3 साल तुमने तबाही फैलाई है और जो पाकिस्तान का हाल किया है, हम अभी भी, क्योंकि हम पॉजिटिव लोग हैं, हम खून देकर भी आगे बढ़े हैं, हर किस्म की कुर्बानी देकर भी आगे बढ़े हैं, घर नहीं बैठे, तो हम अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद इनसे नहीं है, लेकिन हम इन्हें झंझोड़ रहे हैं कि आने वाले बजट में आवाम का सोचें। और अगर इस दौरान भी अपोजिशन का कोई भी रुकन एक दूसरे के साथ उलझता है तो फिर इसका फायदा या इसकी खुशी गवर्नमेंट को होती है, जो कि हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट को मिले। जी भाई, आप क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे या ना करे? दूसरा, अगर आप चाहती हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे ना करे
तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मरियम नवाज को हुकूमत को 5 साल पूरे करने का मशवरा दिया, आपका क्या मौक़िफ़ है, 5 साल पूरे करे हुकूमत या ना? आप जवाब देंगे? देखिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत आज ही आज ख़त्म हो जाए। जो हालात है मुल्क के, उसकी स्ट्रेटजी ये देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि हमने गैर मशरूत तौर पर अपने MNAs चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले करता हूँ कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, वो बजट को नाकाम करें। और देखिए आपने बात की कि जी मरियम नवाज साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमने पार्टी के प्रेसिडेंट से बात करनी है। पार्टी का प्रेसिडेंट इस वक्त शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट के हवाले था, अब शहबाज शरीफ साहब है, हम उनके साथ बात करेंगे, हम उनके साथ कर रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लेके आना चाहते। और दूसरी खाकान अबाई साहब को मैं ये भी मशवरा दूंगा कि आपने जिस तरीके से बात की तो हमजा शहबाज भी बिलावल साहब की उम्र की हैं, तो क्या उनको भी वो मानते हैं या नहीं मानते हैं? शादी में भी मेरा ये सवाल है कि कल जब कोरम की निशानदेही हुई, आप साहब ऐवान से बाहर चले गए, तो चौधरी तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर वो अपने 5 साथियों के साथ लॉबी में चले गए। आमिर डोगर उसको रोकते रहे, लेकिन उसके ऐसे हाथ तुड़वा कर वो लॉबी में चले गए। तो क्या पीपल पार्टी कोई ऐसा नया अमल अख्तियार करेगी कि उनके नाराज लोगों को अपने साथ मिलाकर बजट को मुस्तरद करना? मेरा ख्याल है मैंने पहले जो एक सवाल का जवाब दिया था उसमें मैंने ये भी कवर किया था कि दरारें पड़ चुकी हैं वहाँ। एक तो उनके एलाइज हैं वो नाराज हैं, और दूसरा उनके अपने मेंबर्स भी नाराज हैं, और हैदर साहब इसमें ऐड करेंगे। देखिए इनका भी सवाल और आपका बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन साहब की ख्वाहिश है कि ये हुकूमत 1 घंटा भी ना रहे, और मैं आपको ये दयानतदारी से बता रहा हूँ। इस वक्त जो आपको सवाल करना चाहिए, क्या हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद हैं, इसको आप उल्टा करके पढ़ें। जो 2 साल पहले पढ़ा जाता था, क्या ऑपोजिशन के पास नंबर्स मौजूद हैं? पंजाब में 15 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक अलहदा बन चुका है, तरीन ग्रुप का फॉरवर्ड ब्लॉक इंटैक्ट है, और विफाक में इत्तेहादियों के अलावा कसीर तादाद में डबल डिजिट में MNAs हैं जो शायद बजट पे वोट देने भी ना आए। तो आप जरा देखिए तो सही, पहले तो इनको अपनी तादाद पूरी करनी है। और जहां तक अब्बासी साहब की बात है, अब्बासी साहब हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, सियासतदान हैं, वजीर आजम रहे हैं साहबका। हमने तो लफाजी जंग की है, उन्होंने तो आस्तीनें उठा ली थी पार्लियामेंट पे फ्लोर पे। तो तहजीब का मुजाहरा वो करें, और दर्शन जो है वो जो है लेक्चर वो किसी और को मत दें। आखिरी बात, रोशन डिजिटल अकाउंट्स पे मैं एक बात करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। 7% जिसके रोज आप ये ढोल बजाते हैं, आप सुनते हैं ना, अब 1 अरब आ गया, अब 800 मिलियन आ गया। हर डॉलर जो रोशन डिजिटल पे आ रहा है, क्योंकि आप बड़े सीजन सहाफी यहां बैठे हैं, उस पे 7% डॉलर्स में पाकिस्तान के गरीब लोग सूद अदा करेंगे। हर डॉलर जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं वो वतन की मोहब्बत में भेज रहे होंगे, लेकिन उस पे शरह मुनाफा, जबकि दुनिया में उनको वहां पे अमेरिका में, यूरोप में 0% मार्कअप या प्रॉफिट मिल रहा है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट रोशन डिजिटल की मद में कौम को झांसा दे रही है और अरबों डॉलर का डॉलर्स में कर्ज उठा रही है, जो आने वाली नस्लें आप और हम भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया। आजम साहब अब जो है जब भी कोई तकरीर करते हैं, जब भी बात करते हैं तो कहते हैं क्रैफ्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उन्हीं के करीबी जुल्फी बखारी बाहर चले जाते हैं। जगीर तरीन के साथ इस वक्त डील की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वो मान जाए और बजट को पास कराया जाए। इस सारी सूरत हाल में जो तहसाब का हो रहा है अमल, इस पर आप क्या कहेगी? और साथ जो नैब जिसका काम ही ये है कि वह तहसाब करे बिला तफरीक, उसके किरदार पर क्या कहेगी? देखिए, नैब तो मेरा ख्याल है कि अब तो अदालतें भी नैब के रोल के ऊपर सवाल उठा चुकी हैं। फैसलों में नैब की कारकर्दगी को बयान कर दिया गया है, बता दिया गया है कि नैब जो है वो सियासी मुखालफिन को थ्रेटन करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नैब तो अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो चुकी है। लेकिन चूंकि ये अपोजिशन की जमातें कहती हैं तो इस बात का इनको असर नहीं होता। लेकिन क्या इनको वो लोग भी नजर नहीं आते जो जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है और नैब की कैद में मौजूद हैं, जहां इंसानी हुकूक की वायलेशन नैब उन पर मुतवातर किए चली जा रही है। लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं नैब के इस झूठे एहतसाब के अमल की वजह से। तो इससे ज्यादा नैब क्या एक्सपोज होगी? और जहां तक इमरान अहमद न्याजी का सवाल है, तो आपको याद होगा कि हिटलर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री होती थी। तो इस वक्त भी
प्रोपेगेंडा टीम है ये पूरी, ये प्रोपेगेंडा पे चलते हैं, ये करप्ट अपने सफ़ों में बिठा के बैठे हैं, वो जुल्फी बुखारी हो या फिर वो कल जिस सानेहे के जिम्मेदार मिनिस्टर की गैर मौजूदगी वहाँ हमने देखी, आजम स्वाति जो इनको मजदूरों को कहते थे कि तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है इदारों को, और वो पेंशनर्स थे जिनके साथ वो बात कर रहे थे। ऐसे बेहिस लोग हुकूमत में बैठे हैं जिनका ना दिल है, ना सोच है, ना दिमाग है। ये प्रोपेगेंडा पे शुरू होते हैं, प्रोपेगेंडा पे अपना दिन खत्म करते हैं। तो ये जितनी बातें कर रहे हैं, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल एक इनकी खातून स्पोक्स पर्सन ने उस सानेहे के ऊपर ये कहा कि ये तो पहले ही ये शुक्र करें कि एक हुआ है। अल्लाह के फजल कर, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मैं तो कल इनके रवैये को असेंबली में देखकर दुख हो रहा था, मैं तौबा कर रही थी। अल्लाह ताला हर एक की औलाद को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन कल इन्होंने बेहिसी और बेशर्मी की हदें पार कर दी है पार्लियामेंट के अंदर। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।